نگار یہ بات بریک کر رہا ہوں کہ یہ سب پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. یہ ناظرین بہت بڑا انکشاف ہے جو شیخ صاحب نے بات کیا ہے کہ سی ڈی اے کے اندر بیٹھا ہوا مافیا پراپرٹی کا بھی ساتھ کام کر رہا ہے. اسی حوالے سے شیخ صاحب یہ جو مافیا یہ کس حد تک سرگرم ہے اس حوالے سے جو آپ نے بات کی؟ دیکھیں اتنا سرگرم ہے کہ ایف آئی اے میں I-10 کی کچھ فائلوں کا، کنجنڈم کی کچھ فائلوں کا کیس چل رہا ہے. جب ڈی جی تھے ماشاءاللہ سے حمزہ شفقات صاحب جو اب ہمارے ڈی سی ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ ممبر ایڈمن تھے اور ممبر اسٹیٹ تھے عامر احمد علی صاحب جو ہمارے اس ٹائم چیئرمین سی ڈی اے ہیں اور چیف کمشنر صاحب بھی ہیں، وہ کیس بھی آج تک ایف آئی اے میں دبے ہوئے ہیں. تو چلیں وہ تو دبے ہوئے ہیں، وہ تو پھر ایک قانون کے مطابق چلو جو بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اب فیلیں پکڑی جا رہی ہیں، آپ یقین مانیں اس کے پیچھے تو جن لوگوں کے نام کے وہ پلاٹ ٹکر رہے ہیں ایک ملہ زمین بھی نہیں ہے ان کے پیچھے. اور آپ یقین کریں کہ میں یہ بات بڑے ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کرنے لگا ہوں کہ ممبر اسٹیٹ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دو پراپرٹی ڈیلروں کی جنگ ہے. آپ یقین مانیں کہ میرا دل ٹوٹ گیا اس بات سے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ دو پراپرٹی ڈیلروں کی جنگ ہے. ہم نے جو کہا ہے وہ ثابت کیا ہے. کیا 10 رانا فرحان کے پلاٹ جو کنجنڈم زدہ پلاٹ تھے ایف آئی آپ لوگوں نے نہیں بھیجے؟ کیا وہ فیک نہیں نکلے؟ کیوں چیئرمین صاحب خاموش ہو کے ان کو سروس ٹو ڈسمس نہیں کرتے؟ کیوں اس پہ ایکشن نہیں لیا جاتا؟ فرید الدین پہ کیوں ایکشن لیا گیا؟ کیا وہ ذاتی جنگ تھی چیئرمین صاحب کی؟ کیوں ڈائریکٹر سیکورٹی سے نہیں پوچھا جاتا کہ بھائی میں نے تمہیں آج 1.5 مہینہ ہو گیا ہے جن زمینوں کے جن پلاٹوں کے پیچھے زمینیں نہیں ہیں، یہ آپ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ وہ ایف آئی آر ہے جو ایف آئی اے نے دی. یہ ایف آئی اے نے دی جس میں فیاض بھٹو صاحب جو ہے وہ مدعی بنے ہوئے ہیں سی ڈی اے کی طرف سے، لیکن ایکشن زیرو، سب باہر، وہی ٹولہ دوبارہ کام کر رہا ہے. یہ وہ شو کاز نوٹس ہے جو الحمدللہ میں نے نہیں دیا، جناب ممبر اسٹیٹ نوید الہی صاحب نے دیا ہوا ہے، جس میں لکھا ہے ڈائریکٹر سیکورٹی نے یہ لکھا ہے کہ یہ فراڈ الاٹمنٹ ہے اور یہ فراڈ الاٹمنٹ کر کے 1 منٹوں پہ ٹرانسفر ہوئی ہے. کیوں خاموشی ہے؟ اگر میں جھوٹا پراپرٹی ڈیلر کہہ کے اگر ہمیں خاموش کرایا جائے گا تو ہم خاموش نہیں ہوں گے. ہم ہمیشہ حق اور سچ کی جنگ لڑتے رہیں گے. آپ مانیں کہ میری ذاتی فائل میں نے پیچھے کوئی پلاٹ اپنا مکان ایک ٹرانسفر کروانا تھا تو میں گیا اس کو چیک کرنے لگے، مجھے تھریٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا پلاٹ تو نہیں غلط. وہ بھائی اگر ہم لوگ غلط ہیں، ہمارے پلاٹ غلط ہیں تو جو دو وہاں پہ ایف آئی اے میں ہم کون سے دیکھیں. میں آپ کو بڑے بلند و دعویٰ بیان دینے لگا ہوں، آج تک ہم چیئرمین سی ڈی کے پاس کوئی ذاتی کام نہیں لے کے گئے، آج تک ہم ممبر اسٹیٹ کے پاس کوئی ذاتی کام نہیں لے کے گئے، ڈائریکٹر سیکورٹی کے پاس کوئی ذاتی کام نہیں لے کے گئے. ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ ڈائریکٹر سیکورٹی جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے. وہ جناب وہ جو بوکس فیلو ہیں اس کی آڑ میں لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، ڈیلروں کو تنگ کر رہا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ڈیلروں کو تنگ کرتا ہے، ڈیلر آواز بن جاتے ہیں اور وہ جو گندا گورکھ دھندا ہے بغیر زمین کے جو پلاٹ بن رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ سامنے آ رہے ہیں. اب ہم اتنے تنگ آ گئے ہیں، ہم دوبارہ ایک نئی خبر جو ہے بریک کر رہے ہیں کہ ہم منڈے والے دن یا منڈے مطلب 2-4 دن میں ہم خود ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں اور اس میں ہم خود اپلیکینٹ بن کے اس گورکھ دھندے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے لگے ہیں، جس میں ہم ثابت کریں گے کہ ڈائریکٹر سیکورٹی جو منان ہے وہ اس میں انوالو ہے، چیئرمین اس میں انوالو ہے. ممبر اسٹیٹ جو آج آپ نے بیان دیا ممبر اسٹیٹ نے جن کی فیل تھی عمر عوان صاحب، علی عوان صاحب کے چھوٹے بھائی، ان کو بوکس الاٹمنٹ ہوئی ہے 1 منٹوں پہ. ہم اس کو ثابت کریں گے کہ عمر عوان کو بوکس الاٹمنٹ ہوئی ہے، ہم نے آئی ٹی سے پتہ کروایا. اب وہ الاٹمنٹ لے کے ہم لوگ جا رہے ہیں ہائی کورٹ کہ اگر معاون خصوصی وزیر اعظم صاحب کا، عمران خان صاحب کا معاون خصوصی جو ہے اس کو بوکس پلاٹ مل سکتا ہے تو باقی عوام کیا کرے گی بیچاری؟ جن لوگوں نے اپنی تھوڑی بہت جمع پونجی اکٹھی کی ہوئی ہے وہ کہاں پہ جائیں گے بیچارے؟ تو ہم اس کیس کو ہائی لائٹ کر کے ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور یہ 48 پلاٹس، یہ آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی، یہ آپ ضرور اپنے کیمرے میں دکھائیے گا کہ یہ 48 پلاٹ جو ہے ہم نے یہ عامر احمد علی صاحب کو ہم نے 48 پلاٹ بھیجے، یہ ان کا واٹس ایپ ہے، ان کے نمبر پہ 48 پلاٹ بھیجے جن کے پیچھے زمین نہیں ہے. یہ ان کی فردے ہیں جو پلاٹ عمر عوان کو ہوا، یہ وہ فردے ہیں
जिनके पीछे ज़मीन नहीं है, चेक करवा ले, IT में चले जाएं, लेकिन उसके पीछे नहीं डायरेक्टर सिक्योरिटी उनका अहलकार बना हुआ है। राना फरहान ग्रुप का अहलकार है डायरेक्टर सिक्योरिटी, क्यों नहीं कोई पूछने वाला जी उसको। अफसरशाही जो है वो अवाम की खिदमत के लिए है, ये नहीं है कि अवाम को डराया जाए, अवाम को ब्लैकमेल किया जाए। तो हमने ये फैसला किया है रॉयल टीम ने कि हम अब खुद जाएंगे हाई कोर्ट में, और जो माशाल्लाह से इन्होंने बनाया हुआ है एहतसाब, जो इमरान खान एहतसाब की बातें करते हैं, हम इमरान खान साहब तक भी ये बातें पहुंचा रहे हैं, और सारे पेपर 2-4 दिन में अपने कानूनदान जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं वकला से, हम अपनी पूरे पैनल वकला के पैनल से मशवरा करके अब हम हाई कोर्ट जाके नैब जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा, इंशाल्लाह से आप अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, लेकिन हालात बुरे ही हैं मुझे, क्योंकि कत्ल की धमकियां आ रही हैं। मेरे साथ तो कुछ भी हुआ, अगर मेरी ज़िंदगी को कोई भी नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार ये चेयरमैन CDA और डायरेक्टर सिक्योरिटी होगा, क्योंकि ये उनका अहलकार बने हुए हैं। क्यों ऐसी इंक्वायरी नहीं हो रही? पहले तो 10 दिनों में उसने इंक्वायरी की, 10 फाइलों की D13 की फाइलें की, और उसको जनाब करके फेंक दिया। और उस पे डायरेक्टर सिक्योरिटी ने क्या किया जी, ठीक है जी, सर्विस टू डिसमिस, फारिग। और राना फरहान की 10 फाइलें भाई आप FIA में दे रहे हो, जिसमें डायरेक्टर सिक्योरिटी लिख रहा है ये बोगस है, उस पे चेयरमैन साहब खामोश हैं, उस पे तो आमिर अहमद अली साहब खामोशी छाई हुई है, उस पे तो। लेकिन असल में ना पता क्या बात है, इमरान खान साहब की आंखों में ना पट्टी बांधी हुई है। उनको बताया जा रहा है कि आप जो है हम लोग बड़ा अच्छा मुल्क चला रहे हैं। असल में जो इमरान खान साहब जो एहतसाब का नारा मारते हैं, वो सिर्फ वो ठीक कहती है नून लीग पीपल्स पार्टी, ये सिर्फ अपने बदले ले रहे हैं। ये जो नैब बनाई गई है ये एहतसाब ब्यूरो नहीं, ये इंतकाम ब्यूरो है। ये तो शेख साहब आपने सही कहा कि आपके जो सनसनीखेज इंकशाफात हैं, इस हवाले से मामले खुसूसी अली अवान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। यकीनन ये आप तो अगर जंग लड़ रहे हैं तो यहाँ के जो सियासी नुमाइंदे उनको भी आपके साथ शाना बिशाना खड़ा होना चाहिए कि CDA के अंदर आखिर क्या वजह करप्शन रुक नहीं रही है। इमरान खान साहब का घर है। इमरान खान साहब अगर आप करप्शन की बात करते हैं तो आप अपने पहले घर से सफाई करें। इस्लामाबाद जहाँ पे आप बैठे हुए, आपके नाक के नीचे अली अवान साहब के होते हुए अगर करप्शन के ये बाजार गर्म है तो इस हवाले से सोचना पड़ेगा। तो फिर पाकिस्तान का नंबर करप्शन में और ऊपर जाएगा, जिस तरह करप्शन पाकिस्तान में हो रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो वापिस शेख साहब से जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या हो जो है वो सबूत रखते हैं और क्या इनके पास खबरें हैं। हम सब ने ये जरूर सुना होगा, ओवर लग रही हो, इतनी डार्क लिपस्टिक, इतनी ऊंची हील्स, जोर से ना हंसो, ठीक से बैठो, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है बातें बनाना, पर खूबसूरती से क्या शर्माना। और मेरी खूबसूरती की शुरुआत होती है लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स जो दे मुलायम चिल और महकता है एहसास देर तक। खूबसूरती से क्या शर्माना। Just because everyone's doing it, Gagayahin mo na rin? dare to try something different. Dare to try something fresh. And when it comes to getting rid of dandruff, Di pwede ay nakasanayan lang. Dare to switch. Clear with Total 5 Scalp Freshness. as Nutrium 10 and cooling menthol para no dandruff, itch, grease, dirt, and residue. That's Total 5 Scalp Freshness. Dare to get this fresh. Switch to Clear. बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कहते हैं हर दोस्ती में एक अब्दुल्ला जरूर होता है, कुर्बानी देने वाला, उधार देने वाला,
हर मुश्किल वक्त में आपके लिए खड़े होने वाला अब्दुल्ला। अब्दुल्ला एक खास मिठास का नाम है जिसे आप हमेशा याद रखते हैं। जैसे कैंडी में है व्हाइट और ब्राउन शुगर और कैरमल की खास मिठास क्रंची मजे के साथ। कैंडी की खास मिठास हर दीवाने दोस्त के नाम, क्योंकि कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। शेख यासिर शहजाद साहब, आपने जो सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान जो है वो इस हवाले से बिल्कुल लाइलम है, उनको नहीं पता कि उनके घर के अंदर इस्लामाबाद के अंदर क्या हो रहा है। यकीनन ये जो कहानी का जो ट्विस्ट है, आपने करप्शन की जो बात की है, सीडीए के अंदर बोगस फाइलों की बात की है, इसकी जो कहीं ना कहीं से ऐसे लग रहा है कि ये पहले से इसके ताने बाने जो हैं, जो पहले से राना फरहान, जिनके हम राय रास्त के प्रोग्राम में हम बात कर चुके हैं, जुल्फकार जिनेजो हैं, कई दफ़ा आपने मेरे सामने इस प्रोग्राम के अंदर इनकी बात की। क्या ये कहीं से बोगस फाइलों का धंधा तब से तो जारी नहीं रहा जब तक ये जुल्फकार जिनेजो जो एडी एडमिटिंग थे तब से शुरू हुआ है? सियाब, असल में जब हमारी टीम ने, राहल की टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हमने देखा कि जुल्फकार जिनेजो और राना फरहान एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। जो कुछ डीलर्स हैं जिन पे मुख्तलिफ FIR भी हुई हैं, तो ये सब ग्रुप बना के ये काम इन्होंने जारी रखा हुआ है। तो आप यकीन करें कि हम लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई और बड़ा हम लोग परेशान हुए कि लोग जो इन्वेस्टर हैं वो अरबों रुपए की इन्वेस्ट करते हैं सीडीए पे, कि यार सीडीए में जो काम होगा, जो हमारी ट्रांसफ़र फंड विंडो में होगी, हम बड़े महफूज होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देखें कि अभी तक करजन्नम की फैले डायरेक्टर सिक्योरिटी को मैंने नंबर भेजे हैं। आप यकीन माने कि ये जो आप मैं लैंड शेयरिंग की फैले बता रहा हूँ, जिनके बारे में इंकशाफात कर रहा हूँ, ये जुल्फकार जिनेजो की जब वो एडीएड मीटिंग था तब ट्रांसफर हुई हैं। अभी पीछे एक फाइल पकड़ी गई और उस फाइल पे वो जो लोग हैं वो FIA में चले गए। FIA में जब पहुंचे तो उन्होंने जब पीछे पता कराया तो फाइल के पीछे ज़मीन ही नहीं थी, और जो उसकी ट्रांसफ़र थी वो जुल्फकार जिनेजो ने की थी। ये वो एप्लीकेशन है जिसमें आप देखें कि ये वो एप्लीकेशन है, ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें एप्लीकेशन जिन मदइयों ने दी, उन्होंने लिखा कि हमें प्लाट हमारा मिल ही नहीं रहा। ये बदनीति के ऊपर वन विंडो पे ट्रांसफ़र हुआ। FIA ने जनाब पूरा वो 90 दिन पहले लगाए, 90 दिनों में वो जनाब उनसे सुलह हो गई, और सुलह होने के बाद उनको उनकी पेमेंट दे, वन ट्रांसफ़र, वो प्लाट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, वो वहीं पे रुका हुआ है। लेकिन उसको रोकने में सीडीए ने हलचल ही नहीं की। सीडीए को 3 लेटर गए। ये वो लेटर है जो FIA ने भेजे कि इस फाइल को चेक करें। ये वो लेटर है जो FIA ने भेजे कि इसको चेक करें कि ये प्लाट ठीक है कि नहीं ठीक। वो सुलह कराने के चक्रों में लग गए। आप इससे ज़्यादा हम लोग क्या कह सकते हैं? मनान साहब जो है, डायरेक्टर सिक्योरिटी जो है, वो तो ऐसे इन्वॉल्व हुए हैं, पता नहीं कितना कोई साथ जनाब डायरेक्टर साहब को जाता है। वो तो यहाँ तक आप यकीन माने कि नीचे आके अपने जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, एडीज हैं, उनको नीचे भेज के कहते हैं कि भाई जो रॉयल का ब्यूरो है इसके पास कहाँ से इत्तला चली जाती है बोगस प्लाट जब ट्रांसफर हो रहा होता है। उनको सस्पेंड करने के चक्रों में है। कई जो है कई नायब कास्तों को तो आप देखिएगा कल परसों FIR दे रहे हैं उन पे, और उनको कहा जा रहा है कि तुम लोग रायल टीवी के मुखबर हो। आप यकीन माने कि दिल को तकलीफ हो जाती है कि भाई इतना बड़ा चूना, इतना बड़ा काम होने के बावजूद आप लोग खामोश हैं। आप लोग जो है बोलने के मुतहम्मल ही नहीं हो रहे।
शेख साहब, ये तो आपने जो इंकशाफात कर रहे हैं, आप एक नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के ऐसे इंकशाफात कर रहे हैं, और फिर दूसरा हम देखें कि जो मामले खुसूसी सीडी अमूर हैं अली अवान साहब, वो भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। आपने अपने जब पहले ब्रेक में जाने से पहले बात की कि उनके भाई को भी बोगस प्लाट की जो है वो फाइल इशू की गई, जिसके ऊपर उनको शोकाज नोटिस भी जारी हुआ। क्या अली अवान साहब की सीडीए के ऊपर गिरफ्त नहीं है, या वो इतने कमज़ोर हैं, या सीडीए के अंदर बैठा हुआ माफिया इतना मजबूत है कि वो अली अवान जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के मामले खुसूसी हैं, उनको भी जो है कुछ अथॉरिटी नहीं है कि वो इसके ऊपर काम कर सकें? देखें, मैंने अली अवान से रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं मामला देख रहा हूँ। तो मामला देखते देखते ऐसा हुआ कि अली अवान साहब के छोटे भाई उमर अवान के घर में एक प्लाट ट्रांसफ़र हुआ जो बोकस है, उसी पे शोकाज हुए हैं। जो उसी पे डायरेक्टर सिक्योरिटी ने लिखा कि ये फ्रॉड है, फ्रॉडनेस अलॉटमेंट है। उसको डायरेक्टर सिक्योरिटी को नहीं पता था कि ये अली अवान साहब के घर की फाइल हुई है, ट्रांसफ़र हुई है। अब उसको दबाया जा रहा है। अली अवान साहब को अपनी पड़ गई है कि बाहर खुलेगा तो लोग तो कहेंगे कि आप तो जनाब वज़ीर आज़म साहब के मामल खुसूसी बराए सीडीए हैं। ये तो बड़ा इंकशाफात है। नाजरीन के रॉयल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शेख यासर शहजाद साहब ये आपको बता रहे हैं कि अली अवान के होते हुए उनके छोटे भाई को बोगस फाइल जारी कर दी जाती है सीडीए के अंदर से। तो शेख साहब, मजीद इसके बारे में आपके पास कौन सी मालूमात हैं? नहीं सियाद, फाइल नहीं, प्लाट अलॉट किया गया, और उस प्लाट को आप यकीन मानो कि वो बोकस प्लाट है। उसको उस पे ऊपर फाइंडिंग हुई, उसको डायरेक्टर सिक्योरिटी ने फाइंडिंग पे लिखा कि ये फ्रॉडनेस है, ये फ्रॉड प्लाट है। और उसके पीछे हम जब हमने गए, हम उनकी फर्दों के पीछे गए, हम उन लोगों के पीछे गए, ये उनकी फर्दें हैं और वो बोकस फर्दें हैं उनकी वो आईटी से। हमने कहा सीडीए में नहीं जाएंगे, सीडीए का जो वहाँ पे जो इनका सिक्योर इनके पटवार खानी सिस्टम है वो भी अल्लाह की स्फूर्ति है। ये आईटी में गए, आईटी में जाके हमने वो जगह देखी तो उसके नाम 4 कनाल क्या, उसके नाम, उस बंदे के नाम पूरे पाकिस्तान में एक मल्ला नहीं है। 4 कनाल तो बहुत ज़्यादा है, पूरे पाकिस्तान में एक मल्ला नहीं है। आप माने कि जिसको वो चिराग के नीचे अंधेरा, वो आपने है ना, चिराग तले अंधेरा। तो अली अवान साहब का वही हाल है कि उनको बना तो किया है, वो बड़े मज़े से टीवी में आते हैं, एक पुल बना देते हैं और खरबो 1 अरब रुपए की, हम लोग जो सोचते थे कि 40-50 लाख की करप्शन हुई, 1 अरब रुपए का चूना लग गया सीडीए को। और नैब खामोश है। जो नैब है वो सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी को पकड़ने के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है। ये लोग जो यहाँ पे आजकल अफसरान बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, ये कल पहले नून लीग की ब्यूरोक्रेसी थी। जो पीटीआई में आ जाते हैं वो वाइट क्लीन लोग हो जाते हैं। ये जो पीटीआई है ये वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर जाएं, अपने आप को साफ करें, नहाए धोएं और पाक साफ हो जाएं, पिछली करप्शन माफ। तो ये एक अलमिया है। हम लोग अपनी जानों पे खेल के, अपने आप के ऊपर जुल्म करके, छोटे छोटे हमारे घर बार भी हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने साथ अवाम के साथ एक वादा किया हुआ है कि हम सच की जंग लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। और आप देखें कई जर्नलिस्ट जो हैं माशाल्लाह, कई जर्नलिस्ट जान सच लिखते हुए जान की बाजी हार गए हैं, शहादत उनको मिल गई है। असल में होता ही ये है कि जो सच लिखता है उसको उसके लिए गड़ा खोद दिया जाता है। शेख साहब, आपने पहले भी बात की कि यकीनन जो आप काम कर रहे हैं सबूत के साथ काम कर रहे हैं और सीडीए के अंदर होने वाली करप्शन को मंजरेआम पर ला रहे हैं। होता इस तरह है कि जब भी ऐसे इदारों पे हाथ डाला जाए तो करप्शन की धमकियां वहाँ पे ज़रूर मिलती हैं। सीडीए चेयरमैन या जो सिक्योरिटी इंचार्ज जो है, डायरेक्टर सिक्योरिटी जो है मन्नान, वो और इनके साथ जो प्रॉपर्टी डीलरों का एक जो आपस में एक कनेक्शन है, इससे आपको नहीं लगता कि आपकी जान को भी खतरा है? ये वो लोग हैं जो आपको कल किसी भी हवाले से जो है वो थ्रेट कर भी सकते हैं और आने वाले दिनों में आपकी जान को इनसे खतरा हो सकता है। देखिए जी, मैंने तो अपने पहले प्रोग्राम में भी यही बात की है से आप, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार वो डायरेक्टर सिक्योरिटी और चेयरमैन साहब आमिर अहमद अली साहब और वो डीलर्स और राना फरहान, जो राना फरहान का ग्रुप है डीलरों का, वो जिम्मेदार होंगे। आप यकीन माने कि मुझे तकलीफ़ होती है कि चंद लोग, चंद ऐसे अनासर आज भी उनको बचाने के दर पे हैं। क्या सहाफ़त की ये जिम्मेदारी नहीं है कि काली भेड़ों को बाहर निकाल दिया जाए? उन भेड़ों को जिन्होंने, आप यकीन करें, ये जो प्लाट है, लोगों ने, गरीब लोग, अपने ब्यूरोक्रेट लोग
जो छोटे छोटे तनख्वाहें इकट्ठी करके या पेंशन से अपने बच्चों के लिए उन्होंने ये प्लाट लिए हैं, जब वो 3 महीने बाद 4 महीने बाद पता लगेगा कि ये बोकस प्लाट है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? क्यों इन टाइम एक्शन नहीं लिया जा रहा? मैं आपको ब्रेक के साथ ब्रेक देता जा रहा हूँ। ये पूरा गिरोह बहुत जल्द मुल्क से फरार होने वाला है, और आप देखिएगा कि ये जो सारा मलबा है ये चेयरमैन साहब के ऊपर और मेंबर स्टेट के ऊपर पड़ जाएगा। वो लोग अपने फरार होने की तैयारी कर चुके हैं। आप ये देखिएगा कि चंद दिनों में आपको नजर आएगा कि ये लोग मुल्क से फरार हो जाएंगे। हम लोग इसीलिए आपको बताया है कि हमारी वुकला की जो टीम है वो जल्द हाई कोर्ट जा रही है, जिसमें हम नैब चेयरमैन CDA आमिर अहमद अली, डायरेक्टर सिक्योरिटी, मेंबर स्टेट और डायरेक्टर FIA को अपना उसमें तलब करवा रहे हैं, और उनसे ये सारा कुछ करवा के हाई कोर्ट से श्योर करवाने लगे हैं कि इसकी जो इंक्वायरी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंस होगी और जो अनासर हैं वो सामने लाए जाएंगे। शेख साहब, आपकी और जैसे आपने कहा आपकी पूरी टीम है, इस हवाले से आपने हाई कोर्ट में भी जाने की बात की है। मैं ये सवाल करता हूँ नुमाइंदों से, जो अवाम जिनको मुंतखब करती है कि वो जाके उनके हुकूक की बात करें। आप बार बार जो है हम प्रोग्राम राय रास्त के ज़रिए भी करप्शन को इसको मंजरेआम पर ला चुके हैं। CDA के हवाले से हर प्रोग्राम पर हम बात करते हैं कि CDA के अंदर से करप्शन ख़त्म नहीं हो रही। इस हवाले से जो इदारे हैं वो आखिर जाग क्यों नहीं रहे, क्या वजह है? यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर करप्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी ये चीख के कह रहा है कि 4 दर्जे जो है इसके पाकिस्तान में करप्शन जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। CPI रिपोर्ट है। तो इसके हवाले से मुंतखब नुमाइंदों को भी ये चाहिए कि वो, अगर आप करप्शन के खिलाफ एक जहाद कर रहे हैं और बार बार सबूत भी मंजर आम पर ला रहे हैं, तो मुंतखब नुमाइंदे और जो इदारे उनको जाग जाना चाहिए और इसके हवाले से जो है अमली काम करना चाहिए। इसी हवाले से जो है इस हमारे प्रोग्राम के ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, उसके बाद हम आएंगे तो हम बात करेंगे इंडिया के अंदर जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है, सिखों का एक एहतजाज हुआ है और नई दिल्ली के लाल किले पर जो है खालिस्तान तहरीक का झंडा लहरा दिया गया है। इंडिया जो है वो जो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने पर तुला हुआ था, उसके टुकड़े टुकड़े होने पे जा रहे हैं। शेख यासिर शहजाद हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इसी खालिस्तान तहरीक पे हम बात करेंगे। Just because everyone's doing it, Gagayahin mo na rin? dare to try something different. Dare to try something fresh. And when it comes to getting rid of dandruff, Di pwede ay nakasanayan lang. Dare to switch. Clear with Total 5 Scalp Freshness. as Nutrium 10 and cooling menthol para no dandruff, itch, grease, dirt, and residue. That's Total 5 Scalp Freshness. Dare to get this fresh. Switch to Clear. अल कबीर डेवलपर्स पेश करते हैं रिंग रोड की प्राइम लोकेशन रायविन रोड पर वाक़ई किंग्स टाउन में महदूद कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स और 5 मरला अपार्टमेंट होम्स। बुकिंग सिर्फ 3 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 16,500 रुपए से। बुकिंग के लिए राब्ता करें 0800 11 339। नाज़रीन, ब्रेक के पे जाने से पहले हमने आपसे बात की थी कि हम बात करेंगे इंडिया के अंदर किसानों के होने वाले एहतजाज के ऊपर।
जिसके ऊपर इंडिया की सिक्योरिटी के पोल खुल गए। मोदी जो पाकिस्तान को अपनी पॉलिसियों के नीचे दबाने की कोशिश कर रहा था, उसने सोचा कि इंडिया के अंदर जो खालिस्तान मूवमेंट के सिखों की जो एक मूवमेंट है उसको भी हम दबा देंगे। मोदी बात करता है बलोचिस्तान की, कभी बात करता है कश्मीर आजाद करवाने की। मोदी से सवाल यह है कि मोदी जी आप अपने पहले नई दिल्ली को तो संभाल लें, जहां पे लाल किले पे खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। आप किस पाकिस्तान की बात करते हैं, एटमी पावर की बात करते हैं? पहले उन ट्रैक्टरों को तो संभाल ले, वो ट्रैक्टर्स जो लाल किले की दीवारों को पलंगते हुए आपके लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। बात करते हैं इसी के ऊपर कि सिखों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, सिखों ने नई दिल्ली को हिला के रख दिया। इसके हवाले से बात करते हैं शेख यासर शहजाद साहब से कि जो ये जुल्म हुआ इसके हवाले से ये किस तरह देखते हैं कि सिख कम्युनिटी को और खालिस्तान मूवमेंट को दबाने की कोशिश की गई और उसमें से आरएसएस के गुंडे सामने नजर आए। तो इस हवाले से शेख यासर शहजाद क्या कहेंगे? साहब आपको पता है कि हमने पहले भी मोदी के बारे में प्रोग्राम किया, कश्मीर के बारे में प्रोग्राम किया, तो मैंने तब भी आपको कहा था कि ये मोदी जो है ये वज़ीर आज़म, इंडिया का वज़ीर आज़म नहीं, ये दहशतगर्द है। और आप ये बात जो आपने की कि वो बलूचिस्तान के बारे में बात करता है, वो कश्मीर के बारे में बात करता है, असल में वो इंडिया का, पूरे इंडिया का वज़ीर आज़म नहीं, वो आरएसएस का वज़ीर आज़म है। आप देखें कि अमेरिका ने कहा कि आरएसएस एक दहशतगर्द तंजीम है। आप देखें कि जो सिख कम्युनिटी है वो अपने हकूक़ के लिए बाहर निकली है। क्या वो किसी और मुल्क के सिख है या वो किसी और दुनिया से आए हैं? वो इंडिया के अपने ज़ाती लोग हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं। आप देखें कि मोदी जो है उसने इतना जुल्म किया कि आज उनको बाहर निकल के खालिस्तान तहरीक को ओपन चलाना पड़ गया। क्या ये मोदी के मुंह पे तमाचा नहीं कि दिल्ली के अंदर आके वो खालिस्तान का झंडा लगा दें? ये मोदी जो है ये आरएसएस की कठपुतली है। आप देखें पुलवामा जो हमला हुआ उसको हमारी एजेंसियों ने इस तरह बेनकाब कर दिया कि जो बंदा अपने फौजियों को मरवा के गवर्नमेंट में खून, उसके खून के ऊपर चल के गवर्नमेंट हासिल करता है, वो कैसा इंसान होगा? असल में मसला ये है, ना मोदी के आगे कोई है ना पीछे कोई है, ये एक दहशतगर्द है। सारी ज़िंदगी महरूमियों से महरूम रहा है, ज़रूरियात से महरूम रहा है, तासब पसंद इंसान है। इसको कोई चीज़ भी, एक उसकी उम्र ऐसी हो गई है, थोड़ा सा वो दिमागी भी थोड़ा सिख है, वो मेंटली भी सिख है, तो इस वजह से आप देखिएगा कि बहुत जल्द जो है खालिस्तान तहरीक यहाँ तक पहुँच जाएगी कि इसे हाथ जोड़ के मुल्क का, हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे। ये आप देखें कि ऐसा इंसान जो दिमागी सिख हो, वो एक इतने बड़े मुल्क का, 2 अरब की आबादी है उस मुल्क की, वहाँ का वज़ीर आज़म बन गया है। आप यकीन करें कि ना वहाँ जो मुसलमान महफूज हैं, ना वहाँ क्रिश्चियन महफूज हैं, ना वहाँ सिख महफूज हैं। जिस मुल्क के वज़ीर आज़म को सिर्फ आरएसएस के अलावा, दहशतगर्दी की तंजीम के अलावा, उसने ये जो सिखों ने आके खालिस्तान का झंडा लड़ाया है, इससे ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं, हिंदुस्तान दहशतगर्द मुल्क है। हम लोग तो ये लोग जो मोदी है ना जी, ये इस्लाम फोबिया में खोया हुआ है। इसको ये नहीं पता कि हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो ताकत है वो हमेशा हमें सच की तरफ चलाती है। ये कश्मीर बलोचिस्तान में बेचारा क्या करेगा आके? आप यकीन माने कि इसको यही नहीं पता, इनके जो वहाँ फौजी बॉर्डरों में बैठे हुए हैं, उनको हमारी फौज तो बहुत बाद में जाएगी, उसको वो रात को जिक्र करते हैं कि जिस टाइम पाकिस्तान से अल्लाह अकबर का नारा लगता है तो उनके पेशाब निकल जाते हैं। तो मोदी दहशतगर्द जो है वो छुपा हुआ दहशतगर्द है, पीछे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के अलावा उसको कुछ नहीं आता। अब वो जो सिख है आप देखें तो छोटे से वो कहते हैं ना, कारवां इतना बड़ा बन गया है जो मोदी से संभाला नहीं जा रहा। मुझे ये इस बात का डाउट है कि अनकरीब हम लोग सुनेंगे कि इंडिया जो है 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया।
शेख साहब, आपने बात की 2 टुकड़ों की, हम बात करें मणिपुर के अंदर खाली 39 से ज़ायद जो है अलाद गिब्सन तहरीकें जो है वो चल रही हैं। इंडिया के अंदर जो इस वक्त तहरीकें हैं अलाद गिब्सन, वो मोदी की पॉलिसियों से इतना तंग हो चुकी हैं, कोई जो है नस्ली तौर पे तंग है, कोई मजहबी तौर पे तंग है। पहले तो बात थी कि इस्लाम फोबिया की, हमने देखा कि इंडिया के अंदर जो मोदी गुजरात के अंदर फसादात में मुलविस था, उसके बाद अब नई दिल्ली के अंदर हमने देखा कि सिखों के ऊपर जो जुल्म किया गया है, किसानों के ऊपर जो जुल्म किया गया है, इससे आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर मजीद जो है वो इंतशार बढ़ेगा? देखें, अकलीती जितने पाकिस्तान में आप देखें जो अकलियत है, उसको उसके ऊपर ज़रा सा एक छोटा सा भी हमला हो जाए ना तो सारा मुल्क खड़ा हो जाता है। मोदी एक ऐसा इंसान है जिसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुसलमान वहाँ पे गाय का गोश्त नहीं खा सकते क्योंकि ये गाय को माँ मानते हैं, गाय का पेशाब पीते हैं। जो लोग ऐसी हरकतें करने वाले होंगे, आप समझते हैं कि वो दिमागी तौर पे ठीक लोग होंगे? तो आप जो कह रहे हैं कि 39 जो तरीके चल रही हैं, उसी 39 में जो खालिस्तान की भी तरीक थी, तो आप देखें कि अब खालिस्तान तरीक जो है पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका की जो सहाफ़ी लोग हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि ये जो मोदी है ये दहशतगर्द है, ये झूठे वकूए बनाता है। और जब आप लोग ये देखते हैं कि जनाब मोदी जो है, मैं तो वही एक ही बात करूँगा कि ये बातों से ठीक होने वाला बंदा नहीं है। जब तक हम लोग ऐसे मोदी की लितर पोला नहीं करेंगे ना, इसकी छतरोल नहीं होगी, तो ये इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक दहशतगर्द है। और दहशतगर्द को उसी तरह दिखाया जाता है, किसी भी कंट्री में दहशतगर्द को उसी तरह ठीक किया जाता है। ये इसको सलाखों के पीछे रखा जाए और या तो इसकी मेंटली हालत को चेक कराया जाए। तो मैं ये फिर वही बात है कि मैं ब्रेक करता हूँ कि आप इसका मेंटली इलाज, मेंटली जो है इसका वो करवाएं, क्या कहते हैं, चेकअप करवाएं, ये आपको मेंटली सिक नहीं मिल जाएगा। तो जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ही दिमागी तौर पे ठीक ना हो, तो उस मुल्क के हालात ऐसे ही होते हैं। जहाँ पे अकलीतें जो है, आप कश्मीर में मुसलमानों के हालात देख लीजिए, आप इंडिया के अंदर के मुसलमानों के हालात देख लीजिए। क्यों वो ये मुल्क छोड़ना चाहते हैं, क्यों इंडिया से वो लैदगी चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पे ना उनको कोई सहूलत मिलती है, ना उनके पास कोई इंसाफ है। वो सिर्फ वहाँ पे आरएसएस को एक लॉलीपॉप देता है, कभी बलूचिस्तान का, कभी कश्मीर का, कभी दूसरा का, कभी तीसरे का। उनके पास इतनी जुर्रत नहीं है कि आके यहाँ पे दरख्तों को 2 निशाना बना के आते हैं कि कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे हमला करके वापस आ गए हैं। आप यकीन माने कि वहाँ के उनके अपने जो फौजी हैं, उन बेचारों को खाना तक तो मैसर नहीं है, तो वो जंगें कहाँ से करेंगे? तो आप देखिएगा बहुत जल्द जो है, जो मेरा अपना तज़िया ये बात कर रहा है कि बहुत जल्द जो है इंडिया चंद टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और वहाँ पे जो, क्योंकि ये मेरा ज़ाती बात है कि जो ये जुल्म सिखों के साथ कर रहा है, एक तरफ हम कॉरिडोर खोल रहे हैं उनके लिए कि जिसको वो मानते हैं, जिसकी वो इज़्ज़त करते हैं, वो वहाँ आके इबादत कर सके और अपनी जो इबादत है उसमें उनको कोई भी रास्ता जो रुकावट ना आए। तो एक तरफ ये बंदा जो है उनको असल में उनको तकलीफ ही ये है, ये जो कॉरिडोर हमने खोला है ये तकलीफ है उसको, मोदी को, क्योंकि मोदी हमेशा आरएसएस जो है ना साहब, ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, ये एक दहशतगर्द तंजीम है जो बैनुल अक़वामी तौर पे भी इसको अमेरिका ने ये बात तस्लीम की है कि ये जो दहशतगर्द तंजीम है। लेकिन एक बहुत बड़ा मुल्क होने की वजह से, बहुत बड़ी आबादी होने की वजह से, तो कई ममालिक जो हैं इनको फेवर देते हैं। लेकिन आप देखें कि शुक्र अल्लाह पाक का, अमेरिका का जो सदर था वो भी गया, जान छूटी उससे भी, जिसने पूरे मुल्क को तबाही की तरफ ले गया था, पूरी दुनिया उससे तंग थी। तो आपने कभी ये सुना कि उसने, अब जो नया सदर आया अमेरिका का, अल्लाह करे वो जो है वो एक सीधी राह की तरफ जा सके, उसकी पॉलिसियाँ अच्छी हों। अगर उसकी पॉलिसियाँ अच्छी हुई तो इंडिया को ये जो दहशतगर्द मोदी है ये बहुत दूर ले जाएगा।
शेख साहब, यकीनन आपने सही कहा कि इंडिया की जो मोदी की जो पॉलिसियां हैं वो इंडिया को तबाह करके रख देंगी, क्योंकि जो ये किसानों का जो एहतजाज हुआ है इसने इंडिया की सिक्योरिटी को जो है वो हिला के रख दिया है। लाल किले पे लाल झंडा लहराने का मतलब ये था कि इंडिया के अंदर इस वक्त जो है इंडिया के इंटरनली जो है वो डिस्टेबलाइज हो चुका है। मोदी की जो पॉलिसियां हैं वो इंडिया को रोंदते हुए जा रही हैं। ये हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इंटरनली जो मोदी के ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा है अपोजिशन की तरफ से, वहां की मीडिया की तरफ से, तो इसके जवाब में वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे, जिसके रिस्पांस में वो इंडियन मीडिया को जो है वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट करेगा। लेकिन ये मोदी को ये याद रखना होगा कि पाकिस्तानी जो सियासी क़यादत है और अस्करी क़यादत है वो मोदी की जो चालें हैं उनसे बाखूबी आगाह है। नाज़रीन, देखते रहिएगा प्रोग्राम राय रास्त। इसी के साथ इजाजत दीजिए अपने मेजबान सियाब अहमद अब्बासी को और शेख यासिर शहजाद को। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।